This is a bright new year 2021. 2020 flew in. We were sitting at home. COVID hit us, and many more negative things happened. But still, we stayed positive and we made way through it, right? So, similarly, we are going to make way through parenting, and we are going to do great in parenting. As parents, we have many things in our minds that I want to raise my child this way, I want to raise my child that way. I was raised with this kind of parenting style, but I don't want to raise my kid like that. So, as per that, we make many plans, but somehow we fulfill, somehow we don't. But this coming year, we will decide on a few pointers, and we will walk towards it, right? Maybe a positive parenting approach towards our kids, so that they will stay positive and growth mindset will grow inside them. So I'll be giving you 10 pointers for a year, and you as parents will try to fulfill or try to do it with your kids. So first is try sharing your routine with your kids. बहुत सारे पेरेंट्स का ऐसे कंप्लेंट रहता है, हमारे बच्चे हमसे बात ही नहीं करते हैं, they don't talk to us, they don't share their feelings with us, even we have to ask many questions to them, then only they answer. But question क्या करते हैं, वो जो हमें चाहिए होता है वही सिर्फ बच्चों से निकलवाने की कोशिश करते हैं. इंस्टेड अगर हम लोग हमारा रूटीन शेयर करेंगे, या फिर हमारे प्लानिंग्स कुछ शेयर करेंगे, हमारे फीलिंग्स बच्चों से शेयर करेंगे, तो बच्चा खुद से आके ऐसे बात करने के लिए एनकरेज होगा. सो इंस्टेड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, यू शेयर योर रूटीन, यू शेयर योर थॉट, एंड लेट्स सी कि बच्चे क्या बात करते हैं उसके बारे में. सो इंस्टेड ऑफ asking question, you talk to listen from them, right? So share your routine. This is the first pointer, and you can do it daily, you can do it weekly, or some bigger plans you can share it with them monthly as well. It's as per your choice. Then second is the most loved one, that we like to play with our kids, right? But due to lack of time we don't get to play with them. But ये जो lack of time, ये जो phrase है, हम लोग इसे इरेज कर देते हैं, एंड इंस्टेड जो भी हमें टाइम मिल रहा है बच्चों के साथ, जो भी टाइम स्लॉट मिल रहा है, वेदर दैट बी 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, हाफ एन आवर, 1 घंटा मिल रहा है, we will make it as a quality time. Quantity doesn't matter, but the time which we get with our kids, quality does. So we'll play with them, we'll do DIY activities with them, we'll make gifts for their birthdays or for grandparents' birthdays, sitting with them just for few minutes. और दिस इज़ एज अप्रोप्रिएट, बिकॉज अगर आपका बच्चा बड़ा है तो वो खुद से बैठकर कुछ कार्ड पेंट कर सकता है, या फिर अपने आइडियाज़ पोर इन कर सकता है. बट अगर टॉडलर हुड में है तो यू जस्ट प्ले विद देम, हाइड एंड सीक खेलो उसके साथ, या फिर कोई भी बोर्ड गेम है छोटा सा वो खेल लो, या फिर उसके कार के साथ उसके साथ खेल लो, या फिर सिर्फ पकड़ा पकड़ी खेल लो, वो भी बहुत हो गया उसके लिए. So you need to play with them, do certain activities with them on daily basis or a weekly basis. It depends on how much time you get, and how you spend it. So the quality matters, right? And this is the second pointer, that you play with your kid, you do activities with your kid. There are many DIY activities as per age given on the internet. If you search as DIY activities, you will get n number of activities on the net. So
you can do that, right? It's just the matter of 10 to 15 minutes. Third one is you eat together and read together. How you'll be able to do that, राइट? बिकॉज लंच टाइम में तो हमारे कॉल्स चल रहे होते हैं, हमारा ऑफिस टाइम होता है, अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो थोड़ा भी पॉसिबल हो पा रहा है, लेकिन अगर मेरा ऑफिस है तो लंच तो पॉसिबल नहीं है, डिनर का भी कभी कभी लेट हो जाता है तो पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो हम लोग ये कैसे करने वाले हैं? इवन इफ़ यू गेट टू ईट आउटसाइड, डिनर होते हैं ऑफिस के लिए, अगर आपको बाहर भी खाना पड़ रहा है, लेकिन घर पे आके अगर आप देख रहे हो बच्चा अभी खाना शुरू कर रहा है, ही इज़ सिटिंग ऑन द डाइनिंग टेबल, देन यू कैन सिट बिसाइड हिम, यू कैन टॉक टू हिम अबाउट हिज डे, and you can just have a sip of water along with his dinner. That's like he'll be glad कि बाबा मेरे पापा ने आके मेरे साथ बात की, बैठे, दो, इवन इफ ही वॉज सो टायर्ड आफ्टर हिज डे, वो आकर बैठकर मुझसे उन्होंने बात की. सो दैट इज़ ऑल्सो अ लॉट फॉर हिम. इमोशनल बॉन्डिंग के लिए भी बहुत अच्छा है. रीडिंग की बात करें तो इतना छोटे बच्चों के लिए रीडिंग कैसे इंड्यूस करें? मैं मेरी बात बताती हूँ. मैंने मेरे बच्चे को 1 साल से पहले ही बुक्स इंट्रोड्यूस कर दिए. आई यूज़ टू कीप हिम लाइंग डाउन एंड बुक्स के आसपास रख देती थी. उसको पढ़ना नहीं आता था, लेकिन वो कुछ फ्लिप करता था पेजेस. ब्रॉड बुक्स आती है आजकल, तो आई यूज़ टू डू दैट. सो आई वांटेड टू इंड्यूस रीडिंग अर्ली, सो आई डिड दैट. अर्ली या लेट नहीं होता है, आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हो. तो उसको बुक्स वैसे भी पसंद है. बट अगर आपको आपके बच्चे में रीडिंग की आदत डलवानी है तो आपको खुद भी पढ़ना पड़ेगा, उसके साथ बैठना पड़ेगा 5-10 मिनट बिफोर बेड टाइम या बिफोर नैप टाइम, या जब भी उसका मन करे बैठना है, उसको पढ़ने का मन किया तो आप उसके साथ बैठकर पढ़ सकते हो. ये 1 या 2 दिन की बात नहीं है, आपको ये कंटिन्यूसली कंसिस्टेंसी इसमें लगेगी. आपको उसके साथ बैठना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, थोड़ी देर स्टोरीज पढ़ के बतानी पड़ेंगी. आपको सिर्फ बाजू में बैठ के गैजेट पे कुछ कर रहे हो और बच्चे को बोल रहे हो बुक पढ़ो, ऐसे नहीं होता है. दे आर लुकिंग आफ्टर अस एज अ रोल मॉडल, तो हम लोग जैसे बिहेव करेंगे वैसे ही वो भी बिहेव करने वाले हैं. सो you have to do it along with them. Along is the bold and underlined word. And also you can do activities like old albums लेके बैठ गए, old albums में photos दिखा दिए बच्चों को, आपको childhood stories बता दिए. ऐसे कुछ एक्टिविटीज़ करके आप इन्वॉल्व कर सकते हो बच्चे को. थोड़ा बुक्स में और इन्वॉल्वमेंट स्लोली इट विल प्रोसीड. एंड आफ्टर सर्टन टाइम यू विल बी सरप्राइज्ड कि मेरे बच्चे को बेड टाइम से पहले तो बुक तो लगती ही है, तो बुक के अलावा वो सोता नहीं है. सो दैट इज़ अ गुड एक्टिविटी इंस्टेड ऑफ लुकिंग आफ्टर मोबाइल और अ स्क्रीन. अगर आपका बच्चा बुक पढ़ के सोने जा रहा है तो दैट इज़ अ ग्रेट थिंग, ग्रेट अचीवमेंट एज अ पेरेंट. क्योंकि बुक इज़ अ स्लो प्रोसेस, स्क्रीन टाइम इज़ अ हाई प्रोसेस, उसमें वेवलेंथ हाई लगती है ब्रेन की, और सोने के लिए यू नीड टू काम योर ब्रेन डाउन. सो एज पर दैट, अगर रीडिंग एक्टिविटीज़ बिफोर बेड टाइम, देन इट इज़ ग्रेट फॉर अ स्लीप. सो यू कैन डू दैट. Third pointer is that eat and read together. Definitely you can do that. You can give 5 minutes or 10 minutes of a day. Then the fourth activity I am talking about is the most important one, and everybody does that, I am sure, but उसमें भी एक but है. So the fourth resolution is appreciate more, appreciate little more. वो कैसे करें? अगर ज़्यादा अप्रिसिएशन हो जाती है तो दैट गोज़ टू पैम्परिंग. सो पैम्परिंग भी नहीं होना चाहिए. पैम्परिंग इज़ वेरी बैड फॉर किड्स, राइट? Everything should be in the limit. As a parent, you need to know where to stop. So that is such an important
थिंग कि अप्रिशिएट करते वक्त आपको उससे ज़्यादा भी नहीं होना है, कम भी नहीं होना है, आपको उसको प्रॉपर वे में अप्रिशिएट करना है। अप्रिसिएशन किसको नहीं पसंद है? सब बच्चों को पसंद है। तालियां बजा दी मम्मी ने, पापा ने, दादी ने, दादा ने, तो उनको बहुत ही इनकरेजमेंट मिलती है, वो और भी वैसी चीज़ें करते हैं, राइट? सो इफ़ यू अप्रिशिएट योर किड इन अ राइट मैनर और फॉर अ पॉजिटिव थिंग, then he will be encouraged to do that again and again. So you need to appreciate more. और छोटी छोटी चीज़ें होती है घर में भी, अगर आपको आपके बच्चे ने आपको कहाँ पे हेल्प कर दी, या फिर कपड़े सुखाने में हेल्प कर दी, या फिर कुछ डिशेस लगाने में हेल्प कर दी, तो आप उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं। या फिर उसने उसके खुद के टॉयज़ जगह पे रख दिए, या फिर उसने उसके बुक्स या फिर बैग, स्कूल बैग भर दी, देन यू कैन अप्रिशिएट हिम। सो वंस उसको समझ में आ जाएगा कि दिस इज़ अप्रिशिएबल, सो मेरी मम्मा को या पापा को ये पसंद आ रहा है, देन ही विल कीप ऑन डूइंग इट अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। सो अप्रिशिएट लिटिल मोर बट नो वेयर टू स्टॉप। ऑल्सो ये सब करते वक्त the fifth one is the more crucial one, fifth resolution, it is connect little more with your kids. So you need to connect with your kids. जैसे आजकल के पेरेंट्स की बहुत तकरार रहती है कि टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है, कैसे कनेक्ट करेंगे, मेरा तो बॉन्ड ही नहीं है बच्चे से। डजेंट हैपन। आप आपके पूरे वक्त में से कितना टाइम दे रहे हो, उससे अच्छा कैसा टाइम स्पेंड कर रहे हो, दैट मैटर्स। सो अगर आप स्कूल जाते वक्त बच्चे को एक छोटा सा हग भी दे देते हो, एक छोटी सी पप्पी दे देते हो, तो उसको वो पसंद आ जाएगा, ही विल बी कनेक्टेड। आप उसकी कॉलर ठीक करते वक्त भी उसको एक छोटा सा टच मिल रहा है, दैट इज़ ऑल्सो मोर देन इनफ। आपको छोटी छोटी चीज़ों में उसको जैसे टचेस में एक टच की बात मैं बता देती हूँ। हग्स एंड किसेस, टचेस, आजकल ये बहुत चल रहा है कि कितने टच बच्चों को रिक्वायर्ड होते हैं। सो मिनिमम 8 एंड मैक्सिमम 12, उससे ज़्यादा भी हो पाए तो भी कुछ इशू नहीं है, यू आर पेरेंट्स, सो दैट इज़ फाइन। बट minimum 8 touches are required in a day, but if your child is going through a little harder time, then maybe 12 touches a day are required. So you can hug them tightly, या फिर आपने छोटे छोटी चीज़ें हो गई है, उसकी बिग डील नहीं बनानी है कि आके मुझे हग करो, नहीं, जस्ट you can blow a kiss on a forehead or a cheek. That's more than enough. Even for a teenager I'm saying, I'm not saying only for a toddler. टॉडलर्स को तो कोई भी आके हक करता है, किस करता है, बट वेयर इट इज़ मैक्सिमम रिक्वायर्ड फॉर अ टीनेज चाइल्ड, वेयर उनके स्कूल के कुछ इश्यूज़ होते हैं, उनके फ्रेंड्स के साथ इश्यूज़ होते हैं, इमोशनली भी कहीं कहीं पे उनके इश्यूज़ होते हैं, तो उनको पेरेंट्स का टच या फिर उनका एक इमोशनल बॉन्ड या कनेक्ट इज़ वेरी मच नेसेसरी. Even for a child, one eye-to-eye contact in a day is a must. Conversation with a eye-to-eye contact is must. Then 9 minutes a day. अगर आपका बच्चा बड़ा भी हो गया है, अभी उसके पास मुझे देखना नहीं पड़ता है, it's not that way. 9 minutes a day you have to sit with your child, you have to spend some time with your child. 9 minutes. 9 minutes is not a hard like big figure. It's 3 minutes after waking up, your child needs you. It's 3 minutes after coming from the school or his work, or whatever his classes, and 3 minutes before bedtime. These 9 minutes are more than sufficient to connect with your child if he is a teenager or 10-year-old, 9-year-old. So this way you can connect with your child. देन हाउ टू बॉन्ड, हाउ टू कनेक्ट, इसके लिए एज अ पेरेंट आपको ये सर्च नहीं करना पड़ना चाहिए, आपको उसके साथ खेलना चाहिए. जैसे दीज आर द इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज़. आपको कैसे कनेक्ट करना है, आप उसके साथ खेलोगे तो डेफिनेटली यू विल बी कनेक्टेड. आप उसके साथ रूटीन शेयर करोगे, यू आर कनेक्टेड टू देम. उसके साथ खाना खाओगे, यू आर कनेक्टेड टू देम. उसके साथ पढ़ोगे, बेड टाइम के लिए कुछ थॉट शेयर करोगे, इट्स अ कनेक्शन टाइम, राइट? सो एज अ पेरेंट और अ पेरेंटहुड, मदर, फादर एंड अ चाइल्ड spends a quality
quality time together, they work as a team. So your child understands that we are a team. Even if any hard situation occurs, me, my mother and my father will walk through it very strongly. So he will be encouraged, he will be confident. So you need not have to worry in future कि आपका बच्चा अगर hard times में कैसे behave करेगा. Similarly, the next resolution I'll be talking about is also an important one, is teaching life skills to your child. What are life skills? Life skills are the skills which are required to sustain. जैसे कि अभी लॉकडाउन हुआ था, कितने सारे बच्चे घर से बाहर रहते हैं और वो वहाँ पे ही अटके पड़े थे, लेकिन उनको खाना बनाना नहीं आता, देन मेस बंद थी. ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस आते हैं, लेकिन जो बच्चे खाना बना सकते थे, दे सस्टेन्ड एंड दे स्टेड एट होम वेरी वेल. उनको घर से बाहर रहने में कुछ दिक्कत नहीं आई, बिकॉज दे न्यू द लाइफ स्किल कॉल्ड कुकिंग. So that way you need to teach your kids life skills. जैसे छोटी छोटी घर के काम हो गए, उनको let them do it. आप मेस क्रिएट करोगे, मत करो, ये मत करो, वो मत करो, don't do that, let them do it. Hello स्नेहा, hello मंजूषा, hello अनीता हर्डिकर, hi, thanks for joining me. अच्छा, proceeding further, knowing major life skills, you can imbibe hobbies into them, then maybe spiritual activities, even let them help in your chores, जैसे कि प्लेट्स जगह पे रखने के लिए हो गया, कपड़े सुखाने के लिए हो गया, फोल्ड करके इंडिविजुअली हर एक के कपड़े फोल्ड करके रखने के लिए हो गया. दीज आर द स्मॉल लाइफ स्किल्स. आजकल लड़का हो या लड़की हो, किसी को भी खाना तो बेसिक खाना बनाना आना ही चाहिए. Otherwise, in this world, how are they going to survive if they are going outside for their education? So these few life skill तो उनको आना ही चाहिए. Academics की बात करें तो academics is important, but it's not only the important thing in the life. So education के साथ साथ ये सारी चीज़ें तो उनको आनी ही चाहिए, बेसिक चीज़ें हो गई. Then the next I'm talking about the seventh one is being an eco-friendly. Everywhere we are talking about being an eco-friendly, recycling हो गया. Everywhere we are looking at the symbol, that arrows का symbol, recycling, right? तो ये सारे skills हम लोग बच्चों में कैसे डाल सकते हैं? By doing activities like best out of waste. अब हमारे पास कितने कार्डबोर्ड बॉक्सेस आते हैं, उससे कुछ अच्छा उनको DIY एक्टिविटीज़ के थ्रू कुछ सिखा दिया, तो वो उनमें आ ही जाएगा कि हम लोग ऐसे रिसाइकल अपसाइकल कर सकते हैं घर पे बैठ के ही. सो इवन वेजिटेबल्स, अभी लॉकडाउन हुआ था तभी वेजिटेबल्स बाहर नहीं मिल पा रहे थे, तो जिनके घरों में पॉट्स थे, जिनके घरों में गार्डन्स थे, तो कुछ वेजीज घर पे ही हम लोगों ने उगा लिए. वैसे ही अगर हम लोग बच्चों को एक झाड़ लगाने को बोलते हैं, ट्री प्लांटेशन के लिए बोलते हैं, या फिर वेजिटेबल ग्रो करने के लिए बोलते हैं, तो वी नीड टू टेल देम टू कीप अ चार्ट कि हम लोगों ने इतने डेट को उसको सीड बोया है, फिर उसके बाद उसको फर्स्ट अंकुर कब आया है, फिर उसकी ग्रोथ कैसे हो रही है. वी कैन मेंटेन अ चार्ट एंड दैट वे वी कैन टीच आवर चिल्ड्रन कि कैसे प्लानिंग की जाती है, कैसे हमारा झाड़ ग्रो होता है. सिमिलरली वी हैव टू नर्चर दैट. हमें देखना पड़ता है कि उसको ज़्यादा सन में रखना है या फिर उसको शेड में रखना है, कितनी धूप देनी है, कितने टाइम के लिए देनी है, कितना वाटरिंग करना है. सिमिलरली वी कैन टीच देम दैट वी एज पेरेंट्स डू दैट विथ यू. वी नर्चर यू. हम आपको वर्ल्ड को एक्सपोज कर रहे हैं, जहाँ पे रिक्वायर्ड है, आपको लाइफ स्किल सिखा रहे हैं. सिमिलरली आप झाड़ को भी वैसे ही ग्रो करो. आप उसको कितना पानी देना है, कितना खाद डालना है, ये सारी चीज़ें आपको
ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है. इवन द नेक्स्ट इज़, आपके पास इतने सारे बुक्स हैं, आपके बुक्स किसी लाइब्रेरी में डोनेट कर सकते हो, किसी नीडी को दे सकते हो. सो दिस इज़ ऑल्सो अ वे ऑफ रिसाइकलिंग इट. The next I'll be talking about, the next resolution I'll be talking about is टीचिंग देम सर्विस एक्टिविटीज़. जैसे मैंने अभी बोला कि बुक्स जो यूज्ड होते हैं हम लोग नीडीज़ पुअर्स में दे सकते हैं. तो दिस इज़ अ एक्टिविटी, राइट. डोनेशंस दे सकते हैं. बर्थडेज़ के लिए हम लोग इतना पैसा खर्चा करके हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, बट देर आर मैनी सच चिल्ड्रन हियर इन इंडिया. दे आर पुअर, नीडी. उनको उनके बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए उतना पैसा उनके पास नहीं होता है. उनको बर्थडेज़ क्या, उनको खाना खाने के लिए पैसे नहीं होते हैं. सो वी नीड to teach our children that such people are also there. They are underprivileged and you all get so many things handy. तो आपको उनको भी हेल्प करनी चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, एम्पैथेटिक होना चाहिए टुवर्ड्स देम. एंड this way you can teach them how to be empathetic and how to be conscious. आपके लाइफ में आपको अगर खर्चा भी करना है तो how you are going to do it. इतने पुअर और नीडी लोग हैं घर में, हम लोग कितना खाना फेंक देते हैं, या फिर हमारे बुक्स है हम लोग बेच देते हैं रद्दी में. लेकिन इतने सारे बच्चे हैं जो जिनको उसकी ज़रूरत होती है. तो यू कैन डू डोनेशंस, यू कैन बी एम्पैथेटिक टुवर्ड्स सच किड्स और पीपल. इवन yeah, sorry, I got little distracted. Sorry. So the next is the creative one. The next resolution will be, in a month you can give a day to your child to celebrate his day. So he will plan a day, he will plan a meals. मे बी आपका बच्चा अगर टीनेजर है, 10 साल का है, तो देन ही कैन कुक वेरी वेल. तो ही कैन कुक फॉर यू, like for mother and father or for a family. Then he will plan a day कि आज क्या क्या करना है, आज ये करना है. जैसे हम लोग हमारे बच्चे के लिए इतना सारा प्लानिंग करते हैं, आपको आज ये करना है, आपको दिन में ये बुक फिनिश करनी है, आपको ये होमवर्क करना है. सिमिलरली मे बी ही विल प्लान अ डे. मराठी में एक उनाड़ दिवस जैसे बोल सकते हैं. सो दैट वे ऑल्सो you can give them a whole day planning. So that way he will learn कि मम्मी और पापा को कितना दिन में प्लान करना पड़ता है, कितने प्लानिंग्स करने पड़ते हैं. सो ही विल लर्न थ्रू दैट कि बैकग्राउंड में मेरे मम्मी पापा कितना स्टडी करते हैं एंड दे नर्चर मी, दे गिव सो मच टू मी. So he will be empathetic towards parents as well. So child will understand you very nicely. And last but not the least, emphasizing on the gratitude, you need to say thank you to your kids. एज पेरेंट्स आपके बच्चे आपके लिए बहुत कुछ करते रहते हैं, बट इंस्टेड ऑफ लुकिंग टूवर्ड्स दैट वी लुक वेरी निगेटिव, इन अ वेरी निगेटिव वे. आपने ये नहीं किया आज दिन में, आपने टिफ़िन फिनिश नहीं किया, आपने ये ऐसे क्यों कर दिया. इंस्टेड ऑफ दैट उसने दिन भर में क्या अच्छी चीज़ें की हुई है, वो उसके लिए आप उनको थैंक यू बोल सकते हो. सो जिसके लिए अप्रिसिएशन मिलता है वो ज़्यादा ग्रो करता है. सिमिलरली जो अच्छा होगा वही आपके बच्चे में ग्रो करेगा. सो आप थैंक यू बोलना मत भूलिए. इवन यू कैन परफॉर्म दिस एक्टिविटी दैट एट द एंड ऑफ द डे यू कैन आस्क योर किड, आज के दिन में क्या अच्छा हुआ, आप किसको थैंक यू बोलना चाह रहे हो आज के दिन में. सो दिस वे यू कैन एम्फसिस ऑन द ग्रैटिट्यूड. सो these are the few resolutions as parents we can do for ourselves, not for the kids. As a parent you can do, you can perform as a parent. So we will just revise. First is sharing your routine with your kids. Second is play together, do activities together. Third is eat and read together. Then fourth is appreciate little more. Then fifth is connect little more. Then the sixth one is learning or teaching life skills.
Then the seventh one is being eco-friendly. Then eighth one is teaching service activities. Then ninth one is my day, my schedule. Then the 10th is gratitude. Say thank you to God, to everyone, or to your kids. So kids are our world. So that way we can say thank you to them, right? So I hope you have understood कि हम अपने बच्चों के लिए क्या क्या कर सकते हैं. So I hope you are gaining lot of through this live video. And thanks everyone for joining in. Thanks Gadre sir, thanks Maya ma'am, thanks Sanskruti, thanks Anirudh. Thanks for joining everyone. Just if you have any queries, if you have any topic to discuss with me, please put it in the comment box or drop message to me. Thanks everyone. Enjoy parenting. Keep positive approach. Use positive parenting tools.